What are the common problems in male जो बहुत ज़्यादा आ रही है? Okay, addiction. Porn addiction ज़्यादा common है. Porn addiction and masturbation addiction are two completely different things. Myths about the sexual masturbation. Number one myth is कि आप जितना masturbate करोगे आप उतनी शक्ति खो दोगे. I mean, how does that even work? Doctors tell parents कि आप अपनी बेटियों को sugar कम दो from a young age because उनका periods जल्दी आ जाएगा. Children as young as 8 or 9 years old coming to us कि मेरी बेटी का periods आ गया है and mothers tell us कि आप इसको पैड पहनना सिखाओ. How do you teach an 8-year-old how to wear a pad? इतनी लेंथ होनी चाहिए. And then there's a person उसको है कि नहीं मेरा इतना छोटा है, माई पेनिस इज वेरी स्मॉल. कितने पेशेंट को ट्रीट कर चुके हो? A lot. मतलब बाप रे, like you know, it's heavy. The proportion is heavy. The number of people with living with sexual dysfunction is so big. सेक्सोलॉजिस्ट बनने के लिए ये डिग्रीज होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू अमेजिंग पॉडकास्ट. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो एक सेक्सोलॉजिस्ट के साथ है जिनका नाम है डॉक्टर मिताली श्रीवास्तव फ्रॉम शीतल विमेंस हॉस्पिटल. सेक्स, पोर्न, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब जो टॉपिक्स है ना, वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टैबू है. वी कैन नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट विथ अवर फैमिली और ब्रदर और विथ अ पार्टनर. जिसकी वजह से क्या होता है ना, तुम अगर जो यंग हो या अगर जो कोई प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हो तो अपनी फैमिली के साथ ओपनली बात करने में एक दिक्कत सी हो जाती है. तो सेक्सुअल प्रॉब्लम के जो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं. इस स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए हमने डॉक्टर मिताली से एक ओपन कन्वर्सेशन किया अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स. मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल में कौन से होते हैं, ये सब के बारे में ना हमने इस पॉडकास्ट में बात की है, ताकि ये सब टॉपिक्स के बारे में आप अवेयर हो पाओ. तो इस पॉडकास्ट को है ना अभी से लेके एंडिंग तक पूरा देखना, ताकि आपको 100% इन्फॉर्मेशन हम दे पाएं. सो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट मिताली मैम. Thank you so much कैसे for हो? inviting me. I'm good. I'm good. I hope you guys are good. कितनी एज होगी आपकी? I'm 34 completed. ओके ओके. एंड आपने स्कूल कहाँ से किया था? I did my schooling from Gujarat, Assam, Mumbai, and Karaikal. That is Pondicherry, part of Pondicherry. Yeah. ओके. Yeah. पूरा इंडिया Yeah. अलग अलग. Yeah. ओके. एंड कॉलेज? Pondicherry. 10 years in Pondicherry. Both MBBS and MD, Pondicherry. अच्छा, From ये Pondicherry University. ओके. तो बेसिकली सेक्सोलॉजिस्ट बनने के लिए ये डिग्रीज होती है? No, I think मतलब इंडिया में there is no way that you can become a sexologist with your MBBS MD because we don't have departments for them. Once you've completed your MD, you can start looking into ways to get into sexual medicine. जैसे कि I'll give you my example. मेरे केस में I did MD biochemistry, so that is a totally non-clinical field. That is lab medicine, laboratory medicine, molecular medicine. True. And but because my husband is a gynecologist, I started working as a assistant consultant in a rural women's hospital ओके. because I was a lady doctor and patients को एक comfort रहता है. Women have a different comfort with women. And वहाँ पे थे तो ऐसा लगा कि like there is a scope for a lady doctor in sexual medicine. Anyway, male sexologist हम लोग को रूरल एरिया में we did not know anybody जिसको हम लोग रेफर करेंगे. उस टाइम पे उतना था भी नहीं. I'm talking about almost some 7-8 years ago. And then we thought कि ठीक है, let's look into venues जिसमें I could practice as a sexologist. मेरा एक चैलेंज था कि I was in non-clinical medicine, like that is biochemistry. So I was not a psychiatrist. I was not in andrology. Andrology is basically males का reproductive system का study. So that is a good branch, And then urology. Urology is urinary system. Urologists, andrologists, gynecologists, psychiatrists, these are the branches जो MD या MS करके sexual medicine में mostly जाते हैं. अच्छा. The group that you find in a sexual medicine doctors का set होगा, उसमें आप देखोगे तो this is the, these are the sort of specialists you are going to find. These specialists will study further in sexual medicine and become sexologists. There are other ways to become a sexologist. जैसे मेरा था कि I was very passionate about female sexual dysfunction, like women's sexual wellness. True. And I studied, like India में जो courses उस time पे थे, it was theoretical courses and वो correspondence course बोलते थे. Like you get the material, you study, you give an exam वैसा. But again, it is not recognized by the MCI or something. It's just you get the practice, like you have to study and you have to practice.
And उसके बाद one of my seniors had done a course through the ESSM, that is the European Society for Sexual Medicine. It is the authority in sexual medicine. मतलब the guidelines, the protocols that we use, it is made by the people at ESSM and ISSM, International Society for Sexual Medicine. तो उनके courses होते हैं. But the thing is, you have to go to Europe and you have to get it done. So I went to Budapest in 2022, and they have a very intensive, very thorough training, like morning 8 o'clock से शाम को 6 o'clock तक वाट लगा के रख देंगे वाली training होती है. It's very difficult. But it was a lot of fun because, you know, we were all people passionate about sexual medicine. It was a big batch, I think around, I don't remember, maybe 120, 130 people. तो बहुत बड़ा सा बैच था, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड उसमें से आई थिंक सम 6 or 7 ऑफ अस वेयर फ्रॉम इंडिया, बाकी मिक्स पॉपुलेशन. सो वेरी गुड टाइम, वी आर अ वेरी गुड टाइम. एंड वो किया था, एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. पहले भी प्रैक्टिस करते थे, बट नाउ आई हैड न्यू टूल्स. नाउ it was easier for me to help people. Yes, exactly. And बस वहाँ से जर्नी चालू हो गई. And now I'm still studying actually. अभी I'm doing the first and only course in India, जो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, दैट इज़ JSS यूनिवर्सिटी. इट इज़ अंडर डॉक्टर TSS Rao. ही इज़ ऑल्सो एन अथॉरिटी फिगर इन सेक्शुअल मेडिसिन, एंड वी हैव रियली गुड डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर नीलिमा देशपांडे हैं, देन डॉक्टर TSS Rao है, डॉक्टर शरद कुमार है. दीज आर ऑल टीचर्स जो उसमें हम लोग को पढ़ा रहे हैं. इट्स अ फेलोशिप ऑफ 1 year. If a doctor is interested in sexual medicine, definitely look at fellowship in psychosexual medicine, FPM. Yeah. तो अगर जो अभी बेसिकली इंडिया में एक कोर्स लॉन्च हो गया ना, अभी Yeah. आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हो. जो इंडिया वाला कोर्स है, इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट्स, एंड जो इंटरनेशनल मतलब जो बाहर यूरोप का कोर्स है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द सर्जिकल एस्पेक्ट एज वेल. इसमें भी है, साइकोथेरेपी इज़ ऑब्वियसली कवर्ड, बट मतलब दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज. इट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यू कांट कंपेयर देम. ट्रू. बट आई फील अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड लाइक यू नो, अगर आप साइकेट्रिस्ट हो एंड आप इंडिया में FPM फेलोशिप वाला कोर्स कर रहे हो, you can practice very well. For me, it is important to do both because मेरा नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड है. I needed more training to be where I am right now. ट्रू. और इसके बारे में, ये कोर्स के बारे में और ये फील्ड के बारे में अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैली ना, अभी इमर्जिंग. No, the thing is, it has a lot of potential, but अभी के लिए I have contacted so many corporate hospitals, and but they don't have departments. There is no department of sexual medicine. जैसे इंटरनल मेडिसिन होगा, जीरियाट्रिक मेडिसिन होगा. जीरियाट्रिक इज ओल्ड एल्डरली का मेडिसिन, लाइक यू नो, एल्डरली केयर, एल्डरली सर्जरीज, ये सब. देर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ सेक्शुअल मेडिसिन. अच्छा. नॉट इन गुजरात, इट इज़ नॉट देयर. ओके. तो इट इज़ वेरी मच नीडेड. कोई है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, बट इट इज़ नॉट देयर इन गुजरात. इट इज़ नॉट देयर. मे बी फ्यूचर में इट विल कम अप. आउट ऑफ गुजरात मैसूर में है, एंड देर आर अदर प्लेसेज वेयर इट्स देयर. चेन्नई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है. देर आर सम प्लेसेज वेयर इट्स देयर. पुणे में है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं पुणे में. गोवा में एक नया सेंटर खुला है. बट वही है कि यू नो, इट्स वेरी स्पेसिफिक, एंड दीज सेंटर्स कैन नॉट रीच ऑल द पीपल दैट वी नीड टू सर्व. बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही कम हम लोग डॉक्टर्स हैं जो सेक्सुअल मेडिसिन में हैं. ट्रू. तो अभी बेसिकली धीरे धीरे करके इमर्ज हो रहा है. या इट इज़ एन इमर्जिंग फील्ड, डेफिनेटली. या. एंड अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना था, वर यू स्टूडियस चाइल्ड, बट आप बेसिकली I did not want to be a doctor. Honestly telling, yes, I did not want to be a doctor. My twin sister wanted to be a doctor, and I wanted to be with my twin sister. Okay. So I got into medical, and then हो पसंद नहीं आता था, मन नहीं करता था. I was not a studious child, but you know, वो पढ़ती थी तो हम भी पढ़ ही लेते थे. I don't know if I was a studious child, but I think एक बार सेक्सुअल मेडिसिन में आ गए, एंड देन इट वाज लाइक यू नो, आई जस्ट फाउंड माय कॉलिंग. इट वाज माय पैशन. इट इज एवरीथिंग टू मी. इट इज माय ड्रीम. या, आई एम लिविंग माय ड्रीम. एंड आर यू बोर्न इन अहमदाबाद ओनली? No, I was Baroda born. Like I told you, I'm भटकती आत्मा, right? So I was born in Baroda. Okay. I live here now. I'm settled here in Ahmedabad. You're settled here. Yeah. Okay. So tell me briefly about your journey, like from, let's say from the starting from school to college, like आपकी journey कैसे रही? Briefly मुझे describe करो, like. Okay. So as a child, I think मतलब एक तो हम लोग बहुत स्कूल बदलते थे because of the transfers, and that leads to you being very adaptable. But it can also lead to you being very quiet. So as a child, I was very quiet, which is an extreme opposite of who I am right now. I'm very chatty, very talkative. I love talking. But as a child, I was like that. I was very into reading,
एंड आई वॉज वेरी इंटू इंग्लिश एक्चुअली, बहुत अच्छा लगता था. एंड आई हेटेड मैथ्स ऑब्वियसली. एंड फिर मतलब आई थिंक इन 11th एंड 12th जो स्कूल में गए हम लोग, इट वाज इन अ लिटिल लाइक थोड़ा रूरल एरिया था. एंड वहाँ पे थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई सिंपली बिकॉज वी वर ट्विंस. इसलिए हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस, वी लुक द सेम. तो या आप भी आए हो ना ऐसा, क्या? आपकी बहन. नहीं मैंने been Canada, how will she come? Okay, So yeah, but मतलब like वहाँ थोड़ी popularity and I started talking, taking part in skits and all. Okay. And college में I became like total जैसे अभी हम हैं, and very shameless यार. मतलब talkative के बाद एक और level आता है जिसमें you don't care what people think, and that also gives you that ability कि कि सामने वाले को, yes it can sound crude sometimes and छोटे भी थे, I was immature. बट जैसे जैसे बड़े हुए आई रियलाइज कि मी बीइंग लाइक थोड़ा ओपन एंड शेमलेस एंड वेरी कैजुअल विद माई फ्रेंड्स, a lot of people would just come and vent and dump and like tell me a lot of things and I didn't mind that. I enjoyed it. So like तो साइकेट्री चूज करना चाहिए था पहले से. So what is your Instagram handle basically? द बेशरम डॉक्टर. Yeah, basically, yeah. Okay. So when you started out this field basically, तो आपने क्या क्या challenges face किए? What was the reaction of the family? कि यार ये क्या है? ये क्यों है ऐसा? Yeah, okay. Actually, my family was very proud of me. They were kind of stunned in a happy way because like उनको था हमारी arranged marriage है and husband is a gynecologist. हाँ. So if I would compliment his field, तो हम लोग साथ में काम कर सकते हैं and we could support each other. True. गायनेक हॉस्पिटल में बैठ के ही हमें एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट्स मिलेंगे बिकॉज आई मीन द फील्ड ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन. तो दैट वे वो हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लान था कि लाइक इफ़ वी हैव आवर ओन हॉस्पिटल एंड वी डू हैव आवर ओन हॉस्पिटल, वी आर पार्टनर्स एट शीतल वुमेंस हॉस्पिटल, इट्स इन अहमदाबाद खाटोडिया. तो वो हम लोग को बहुत कन्वीनियंट पड़ा. रूरल एरिया में भी उसी हॉस्पिटल की एक ब्रांच थी. वहाँ आई कुडंट डू मच फॉर द पेशेंट्स बट यहाँ पे येस डेफिनेटली वी डू गेट पेशेंट्स एंड इट्स गुड. वो जो family was proud of me, happy. Even my in-laws and my own parents, they were all very supportive, very proud कि even जो fees देनी होती है like for the Europe आप जा रहे हो, it's expensive, right? मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट हमारी छोटी एज पे एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि हाँ इट्स अ बिग अमाउंट जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो उसमें फिर मतलब इट वाज लाइक माय फादर इन लॉ वुड टेल मी कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे में, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इनटू योरसेल्फ. So that was a very happy thing and my parents also were very supportive कि you're doing so much कि like तुम अपने आप ये रास्ता ढूंढ रही हो. तो they were very proud of me and I don't even have to say what my husband did for me. It was his idea कि तुम sexual medicine में जाओ. Without it I wouldn't have found my dream. तो वो yeah, that's good. Okay. And आपका family background क्या था पहले? फैमिली बैकग्राउंड एज इन पेरेंट्स क्या करते थे Yeah, और ट्रांसफरेबल चलो लाइक दोनों ही तरफ ऐसा है. हम मेरे और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स लाइक फादर दोनों इंजीनियर्स थे, मदर्स दोनों होम मेकर्स थे. मम्मी लोगों ने बहुत ध्यान दिया बच्चों को बड़ा करने में एंड शादी के बाद भी हम लोग को बच्चों की तरह बहुत ध्यान रखते हैं. बोथ द फैमिलीज आर वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग एंड लाइक उनके आई थिंक उनके सपोर्ट से, उनकी ब्लेसिंग्स से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं. सो फॉर मी बिकॉज आई एम स्टिल स्टडिंग लाइक अभी भी फेलोशिप कर रहे हैं, फिर आगे और कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है. यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू स्टडी टिल द डे यू डाई. तो इन दैट वे इट्स गुड लाइक यू हैव दैट, पता है आपको आपके पीछे खड़े हुए हैं सब, पेरेंट्स आपके पीछे हैं, येस वी सपोर्ट यू इन व्हाट यू आर डूइंग. तो वो पावर अच्छी लगती है. दैट इट फील्स नाइस, दैट प्रोटेक्शन फील्स नाइस. When should he or she approach a sexologist basically? या ओके. बिकॉज लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अभी कि यार सेक्सोलॉजिस्ट, अच्छा ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा सोचोगे नहीं ये डॉक्टर को मिल लेता हूँ या ये डॉक्टर, बट देर इज़ नो परफेक्ट डेफिनेशन कि हाँ मुझे इनकी ज़रूरत है. जब भी हम लोग हिस्ट्री टेकिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हिस्ट्री टेकिंग. कोई भी जब हम लोग MBBS में होते हैं ना, हम लोग सेकेंड ईयर से हमारे क्लिनिकल रोटेशंस चालू होते हैं. तो उसमें द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज हिस्ट्री टेकिंग. आप पेशेंट से उनकी हिस्ट्री जानो कि आपको क्या तकलीफ़ है, कब से तकलीफ़ है. तो जब हम लोग ये सब चीज़ें पूछते हैं, ऑफन वी मिस आउट ऑन द सेक्शुअल पार्ट. कोई भी लेडी है, शी हैज़ कम विद लाइक पीरियड प्रॉब्लम्स है या जस्ट कपल रिलेशनशिप, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, एक सेक्सुअल हिस्ट्री होनी चाहिए. बट वो नहीं होती है. पीपल डोंट टेक दैट हिस्ट्री एट ऑल. वी मिस आउट बिकॉज हम लोग बहुत शर्माते हैं एंड पेशेंट, हम शर्माएंगे तो सामने से पेशेंट डेफिनेटली शर्माएगा. तो दैट्स नॉट देयर. ठीक है. तो व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग गायनेकोलॉजी फील्ड में हो या आप एंड्रोलॉजी में हो,
you will definitely come face to face with the infertility. It is the point at which patients think of coming to a sexologist. It is the point at which a gynec will refer you to a sexologist कि इन लोग को शायद sexual issues हैं जिनकी वजह से they are not able to conceive. That is one point. कि मतलब एक मैरिड कपल है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम एंड देयर इश्यूज आर एक्चुअली सेक्सुअल एंड नॉट क्लिनिकल, लाइक वैसे टाइप के नहीं है, नॉट मेडिकल. एंड अनदर थिंग वुड बी कि अ पर्सन जिसने जो भी सुना है, हमारी चारों ओर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है कि दिस इज हाउ इट शुड बी. फॉर एग्जाम्पल वील जस्ट टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द पेनिस कि इतनी लेंथ होनी चाहिए, एंड देन देयर इज अ पर्सन उसको है कि नहीं मेरा इतना छोटा है, माई पेनिस इज वेरी स्मॉल, तो लाइक समथिंग इज अब नॉर्मल, इट इज आई हैव समथिंग इज रॉन्ग विद मी. यू जस्ट कम टू अ डॉक्टर, कोई भी एंड्रोलॉजिस्ट हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, सेक्सोलॉजिस्ट हो. You come to them, we'll look at you, we'll tell you it is genuinely condition है, micro penis is a genuine clinical condition. Very rare. Okay. Yeah, very rare. So micro penis is a condition, but it's very rare. And normal जो majority of the people who come to us with this complaint कि I think my penis is small, I think I'm not able to satisfy my partner because my penis is small. Majority of them have a very normal average penis. It is not at all like छोटा है कि कुछ तकलीफ है, कम है, nothing like that. तो there's a lot of misconceptions. That is again the point जहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं कि मुझे लगता है ना कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जो हमारे मैकेनिक्स है ना वो हमारे सेक्स के मैकेनिक्स गलत है. And then we just teach them the anatomy. You can do it with diagrams, you can do it with models. So and we just teach them self-awareness methods. True. Mirror work होता है, like you sit with a mirror and explore. Partner work होता है. That way, वैसा टाइप का हम लोग समझा सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअल मैकेनिक्स ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग, एंड बियॉन्ड दैट जितना आपको पेनलेस है, जितना आपको कंफर्टेबल है, इज योर बाउंड्री. उतना, एंड देन यू जस्ट प्ले इन दैट एरिया, प्ले इन दैट बाउंड्री, वैसा. सो जब इरेक्टाइल डायफंक्शन होता है और ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग द वेजाइना हार वगैरह, उसमें भी सेक्सोलॉजिस्ट को अप्रोच करता है? Yes, we are the right people to come to if you have any issues with erection, if you have any issues with your genitals basically. Because हम लोग बहुत सारे एरियाज, ओवरलैपिंग एरियाज कवर करते हैं, बिट ऑफ गायनेकोलॉजी, बिट ऑफ एंड्रोलॉजी, बिट ऑफ डर्मैट, मतलब हर चीज़ हम लोग को बताया जाता है, बट एवरीथिंग पर्टेनिंग टू द जेनिटल्स. तो उसमें हम लोग को एक आइडिया लग ही जाता है. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ वेरी कॉमन आई गेस, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है. इट इज़ इवन मोर कॉमनली सीन विद मेल सेक्सोलॉजिस्ट बिकॉज आई एम अ लेडी डॉक्टर. मेरे पास जो कपल्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, दे आर मोस्टली फीमेल्स. समटाइम्स अ मेल मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल कि सामने लेडी डॉक्टर बैठी है. आई हैव द एडवांटेज कि आई हैव अ मेल सर्जन ऑन बोर्ड, तो ही कैन एग्जामिन द पेशेंट एंड देन गेट बैक टू मी, एंड देन हम लोग कर सकते हैं. बट समटाइम्स पेशेंट्स आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद दैट, इट्स वेरी रेयर बट इट हैपन्स. सो वी हैव वेरी गुड रेफरल सिस्टम्स इन सेक्सोलॉजी बिकॉज वी हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स कि हाँ ये डॉक्टर है, ही इज़ वेरी गुड विद ED, ये डॉक्टर है, ही इज़ वेरी गुड विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऐसा सब लाइक सेक्सुअलिटी आफ्टर चिल्ड्रन, ऐसा सब में बहुत अच्छे हैं काउंसलिंग में. लाइक ऐसी सब चीज़ों में वी नो होम टू रेफर टू, वी नो द एग्जैक्ट पर्सन हु इज गोइंग टू फिक्स इट फॉर यू. तो वो एक और एडवांटेज होता है. एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स बेसिकली यू प्रोवाइड राइट नाउ? ट्रीटमेंट्स में आई डील मोस्टली विद फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड कपल्स थेरेपी. तो उसमें फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड कपल्स थेरेपी दोनों में ना बहुत सारा. फीमेल डिस्फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या? फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन इज बेसिकली जैसे कि मेल्स में ED, PE. ED इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, PE इज प्रीमेच्योर एजैकुलेशन. या तो ये दो चीज़ें कॉमन होती हैं. ED इज मोर कॉमन एक्चुअली. एंड सेम वे फीमेल्स में फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इट कवर्स एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन द सेक्स लाइफ ऑफ अ फीमेल. सेक्सुअल पेन, पुअर डिज़ायर, पुअर अराउजल, नो ऑर्गेजम्स, पुअर ऑर्गेजम्स, बहुत सारी चीज़ें. एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन अ फीमेल सेक्स लाइफ इज अंडर फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन. उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. वन इज सेक्सुअल पेन and another is low desire, like arousal disorders या desire disorders, ऐसा. Okay, how many patients do you have right now? Like कितने patient को treat कर चुके हो? Oh my God, that's difficult to calculate. Many, a lot. मतलब I don't know in what range are you asking? Maybe I don't know. Like lot many people are facing these issues. A lot. मतलब मेरे पास तो I just get a proportion of the patients. Like you look at the statistics in research journals and
मतलब बाप रे, like you know, it's heavy, the proportion is heavy, the number of people with living with sexual dysfunction is so big, because and उसमें भी women have more dysfunction, but it is less researched, it is less treated, it is less reported. अच्छा, That is why it is less treated, that is why it is less studied. ओके. एंड व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन मेल बेसिकली? आप मेरे को 4 प्रॉब्लम ऐसे बताओ जो अभी मेल्स में बहुत ज़्यादा आ रही है, Okay. एंड 4 प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा आ रही है. Okay. Males में the number one problem that we see is erectile dysfunction. ठीक है. Obviously, the second one would be delayed ejaculation. Delayed ejaculation is कि वो try कर रहे हैं, थक गए and ejaculation हो नहीं रहा है. That also happens. Then there is another one, premature ejaculation, right? अभी क्या होता है ना, once you start trying to treat these things, ED, तो ED आप ट्रीट करने जाओगे ना, पेशेंट को PE होने लगता है, PE ट्रीट करोगे पेशेंट को ED होने लगता है. सो यू नो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस एंड ट्रीट इट. मतलब लाइक यू नो ट्रीटमेंट भी आपको फॉलो अप के साथ करना होता है. यू कैन लाइक हाँ दवा ले ली ठीक हो गया, यू एंड अप विद समथिंग एल्स. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कायदे से फॉलो अप रखो. सो दैट वर्क्स. एंड द फोर्थ प्रॉब्लम वुड बी एडिक्शन. पॉर्न एडिक्शन ज़्यादा कॉमन है. मैस्टरबेशन एडिक्शन एंड पॉर्न एडिक्शन में पॉर्न एडिक्शन इज मोर कॉमन. ये 4 चीज़ें कॉमनली लाइक यू नो वी टॉक अबाउट दिस इन द ओपीडी. एंड फीमेल्स में द मोस्ट कॉमन वुड बी सेक्शुअल पेन. एट पेनिट्रेशन देयर इज सेक्शुअल पेन. ठीक है. तो एंड देन अनदर वन वुड बी पुअर लुब्रिकेशन, कि द वुमेन वांट्स टू हैव सेक्स, शी वांट्स टू एंजॉय, बट उसको लुब्रिकेशन नहीं है, नेचुरल जो वेटनेस आनी चाहिए वो नहीं है या कम है. एंड दैट अगेन लीड्स टू ड्राइनेस, फ्रिक्शन बर्न्स, पेन, ऐसा. द थर्ड वुड बी लो डिज़ायर, कि लाइक उसका मन ही नहीं है करने का. दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ वन ऑफ द यू नो कॉमन थिंग्स आई फाइंड आउट व्हेन आई एम डूइंग लीडिंग क्वेश्चंस. Okay. उसमें होता है कि मारी तो इच्छा नहीं थी, मन तो करूँ नहीं. ऐसा बोलते हैं वो लोग, लाइक मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को करना ही नहीं है. इट्स लाइक अ चोर, वासन घसने जैसा है वो. इट्स लाइक दैट. It's not something they look forward to. And another thing I guess would be बहुत सारी चीज़ है, you know, like it's so many, but these 3 are more common. common. Yeah, very common. Another like you know fourth अगर आप पूछो तो it is bleeding, कि post coital bleeding बोलते हैं उसको, कि सेक्स करने के बाद at the like you know 6 o'clock position in the vagina वहाँ पे bleeding हो जाता है, spotting जैसा होता है. And it is almost Women are not not aware about it, right? Like they think कि ये नॉर्मल है, कि नो एफ नहीं. किसी को बोलते हैं, वेरी रेयरली दे शेयर दिस, एंड जब बोलते हैं तो इट्स लाइक अरे ये तो मुझे भी होता है, अरे ये तो सबको होता है यार, इसमें क्या है, इसमें क्या नया है. normal. it is so common that people think it is normal, but it is not normal. It can be treated. You can very well enjoy painless sex. Painless sex is good sex. Sex should not be painful unless you want it to be. Okay. So why this? Okay. And I heard about the term libido. Yeah. What is this for? Libido is desire, the desire to have sex. Okay. And why there is a low libido? ओके. लो लिबिडो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है. कॉमनली लाइक यू नो अगर आप यू हैव बैक एक, यू आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, यू आर ऑन लाइक यू नो आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस चल रहा है, आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनती है बट घर वालों के साथ नहीं बनती है, आपका बच्चा स्कूल में मतलब लाइक यू नो स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, आपकी बाई नहीं आ रही है, आपकी रसोइया ने खाना अच्छा नहीं बनाया. सो मैनी रीजन्स की लाइक यू नो लो लिबिडो. बट नॉर्मली क्या होता है ना, जब अपना मेंटल स्टेटस is not healthy, like you know when we feel low, हमारा libido भी low हो जाता है, because sex is a healthy natural carnal urge. True. वो तब रहेगी when you are healthy. Okay. Sometimes ये जो urge होती है ना, it is not always there. And हम लोग sexual medicine में बोलते हैं desire does not fall from the sky. राइट. आपका नॉर्मल दिन है, आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं है, एंड देन सडनली यू आर वॉकिंग एंड यू सी दिस पोस्टर ऑफ सम रियली अट्रैक्टिव समबडी, चाहे इट्स अ मेल और अ फीमेल वॉट एवर जो भी पसंद है आपको. यू सी समबडी एंड देन इन दिस वेरी टिटिलेटिंग वीडियो या टिटिलेटिंग क्लिप और वॉट एवर, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉर्न, इट इज़ जस्ट नॉर्मल समथिंग, नॉर्मल बिल बोर्ड है, बट इट इज समथिंग यू फाइंड अट्रैक्टिव. ऑन एनी अदर डे यू मे नॉट फाइंड इट अट्रैक्टिव, बट उस दिन आपको दिख गया कुछ. True. एंड देन आपके दिमाग में ख्याल आएगा, एंड देन यू नो you'll have this in the background buzzing कि like you know, and then you'll have that desire like whether to like masturbate करो या तो you go have sex. तो but like you know there's a stimulus. True. So that is good libido, कि आपको stimulus है, या तो even naturally अंदर से urge आता है कि करना है, like So whether it basically whatever. you have to be like very free during the time and आपको low stress रखना है ताकि आपका better. Yeah, जितना आप stressed out होगे उतना your libido is going to be impacted. It is going to feel low. You will not feel like doing it because you know it's like it will not feel important enough that way.
एंड व्हाट इज द पोर्न एडिक्शन एंड हाउ कॉमन इट इज़, लाइक आपके पास जितने भी ट्रीटमेंट्स लेने के लिए आते हैं, वो आप उनका क्या परसेप्शन होता है बेसिकली? Porn addiction stems from a root, like core cause होता है उसका, like young age से वो exposed होते हैं to porn. And let me tell you at the start कि porn addiction and masturbation addiction are two completely different things. Porn addiction often overlaps with masturbation addiction. Porn addiction is आप porn, audio, video या जो भी आप देख रहे हो, to that stimulus you are addicted. Masturbation addiction is you are addicted to the act of masturbating. True, Okay. true, true. Obviously they would overlap occasionally, but most common is porn addiction. या इन porn addiction you have a fantasies, like कि आप जो भी बातें हो रही है या जो भी हो रहा है, that is आपका दिमाग पूरे टाइम यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे को वापस porn देखने मिले, मुझे वापस करने मिले, देखने मिले. people are getting addicted to this thing. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस कि मुझे शायद पॉर्न एडिक्शन है या मेरी फैमिली मेम्बर को पॉर्न एडिक्शन है, दे आर जस्ट यंगस्टर्स जो पॉर्न देखना स्टार्ट किए हैं एंड दे आर वेरी ईगर अबाउट इट. पॉर्न एडिक्शन जिन लोगों को एक्चुअल में होता है, इट वुड कॉज देम डिस्ट्रेस, मतलब लाइक इट शुड कॉज यू जेन्युइन डिस्ट्रेस कि दे डोंट वांट टू, लाइक उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, उनके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी स्टडीज डिस्टर्ब हो रही हैं. अ लॉट ऑफ योर लाइफ इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड Okay. बिकॉज आपका दिमाग सारे समय पॉर्न में, लाइक दैट. मैस्टरबेशन एडिक्शन इज समथिंग सिमिलर कि यू जस्ट वेट कि आपका आपको मम्मी ने बोला है कि जाओ बेटा जाके सब्जी लेके आ जाओ, गेस्ट आने वाले हैं, बट नहीं, आप पहले बाथरूम में जाओगे, आप पहले मैस्टरबेट करोगे एंड देन भले देर हो जाए, गेस्ट हो जाए, गेस्ट के सामने आप जाओगे सब्जी लेने के लिए. लाइक अननेचुरल बिहेवियर आप कर रहे हो, रिस्की बिहेवियर आप कर रहे हो, just to be able to access porn, just to be able to access masturbation, because it provides instant gratification, and anything that gives you instant gratification can become an addiction. Does not mean कि porn and masturbation unhealthy है. Masturbation is definitely not unhealthy. Porn can be unhealthy, obviously. Depends on what you're watching. Like there's immature porn. There's a lot of different types of porn. Violent porn, pedophilic porn. ये सब चीज़ें are definitely problematic. What we say is problematic porn viewing. PPV बोलते हैं उसको. Okay. That porn addiction is a very general term. Not everybody who thinks कि मुझे porn addiction है, सबको नहीं होता है. You just come visit us. We'll talk to you. We'll find out if you're actually addicted or It not. is basically a psychological. Yeah. But if you're thinking कि आपको am I addicted, if even that thought is coming to you या आप उसके बारे में denial में हो, like नहीं मुझे नहीं होगा, नहीं I am not addicted to porn. वो that denial का एक stage होता है addiction में. If you feel ऐसा है, come see a sexologist. Like go see a sexologist and we'll be able to guide you better कि like are you actually addicted? Is this how, to what degree it is disturbing you and how to get back on track? So How this to is the advice on a healthy way. This is the advice for them. Yeah, definitely कि आपको डाउट भी हो रहा है ना, then go see a sexologist and they'll be able to guide you on the कि आप कैसे healthy track पे रहो. We're not saying कि आप masturbate करना बंद कर दो, आप porn मत देखो, nothing like that. Personal choices, personal views, right? True. But something that is not going to cause you grief वैसा and not make you get addicted. Okay. How much porn is realistic? Like जिस तरीके से वो present करते हैं, because if you see जितने भी youngsters आज देख रहे हैं, they see it in completely different way, जो reality actually शायद नहीं होता है. If you see the Quora blogs, basically आपको reality पता चलेगी कि ऐसा actually existence में नहीं होता है. नहीं होता है. They are artists. They are doing their art and they do it very well. ठीक है, जितना अच्छा वो अपना काम करेंगे उतना अच्छा आपको इमेज मिलेगा, बट इट इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम रियलिटी. when you indulge in sexual acts, whether see आप solo play कर रहे हो, solo play is masturbation. आप solo play कर रहे हो, it is a completely different thing. You fantasize, it's all in your head, nobody is looking at you, everything is different, ठीक है. But when you are in a partnered activity, like partnered या partners के साथ, single partner, multiple partners, whatever you want, जो भी आप कर रहे हो, right? उसमें things are different. आपकी feelings come into the picture, सामने वाली की feelings आ जाती हैं. There's also that pain, awkwardness, आप लोग की body की mechanics and all होते हैं. तो like a lot of these things come into the picture and they are kind of going to make everything awkward. True. And ऐसा नहीं होता है, मूवी में दिखाते हैं ना प्यार, इश्क, मोहब्बत, पैशन and then sex और and then वाह. No, it doesn't work like that. It's very awkward, it's very funny. मतलब like sex आप real life में करने जाओगे ना तो it's very different from what you see in porn. Yeah, it's very natural. Yeah, and what advice would you give for the porn addiction कि जिन लोग को ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, they can't live without it, or
एक रियलिटी बाद में उनकी वही बन जाती है. दे ट्रीट एवरीथिंग दैट वे Yes. बिकॉज दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. अगर जो आप बहुत सारे केसेस और वगैरह जो इमर्ज हो रहे हैं, पीपल आर वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स इट. क्योंकि ये सब है ना, आपको रेडिट के ऊपर, कोरा के ऊपर बहुत ज़्यादा Yeah. रीड करने के लिए मिलेगा कि पीपल आर लाइक, मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि वायलेंट होते जा रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस Yeah. फोन एडिक्शन. There are a lot of factors. यही रियलिटी है, इसी तरीके ऐसे ही से होना होता है. चाहिए. This is how you are supposed to treat people. This is how you are supposed to behave Yeah. in that aggressive, violent way. Porn might be a contributor to that, but obviously there are a lot of factors. बहुत सारे लोग होते हैं जो porn देखते हैं and it doesn't impact their daily life because they are aware of what is real and what is not real. But then again, आप porn को natural जितना आप देखोगे, जितना you are more exposed to it, and obviously आपको addiction है, कितना आप देख रहे हो, the amount you are consuming is heavy. It is going to impact your nature definitely. तो जो genuinely जिन लोगों को addiction होता है, उन लोग को on the right track या on addiction से निकालना is a little difficult. मतलब उन लोगों को बेसिकली ये समझाना होता है कि आपकी रियलिटी क्या है. यू हैव टू फाइंड आउट उनकी रियलिटी क्या है. यू हैव टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स. यू हैव टू गिव देम दैट सेफ स्पेस कि इट इज़ लाइक यू आर नॉट अ बैड पर्सन. योर बिहेवियर हैज़ चेंज्ड एंड वी वर्क ऑन दैट. क्योंकि द मोमेंट यू टेल देम कि तुम एक एडिक्ट हो या तुमने ऐसा किया है, तुम ऐसे हो, दे इमीडिएटली बिकम डिफेंसिव एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम आउट. तो उस हिसाब से फिर हम लोग को उनको गाइड करना होता है एंड फैमिली को भी समझाना पड़ता है बिकॉज समटाइम्स दिस पर्सन इज़ नॉट रॉन्ग. दिस पर्सन इज़ जस्ट अ टीनेजर, जस्ट न्यूली डिस्कवर्ड, एंड उसको पूरी फैमिली मिलके इतना बुरा बना देगी, इतना बुरा बना देगी. दिस इज अगेन वेरी कॉमन. तब्बू. या कि मतलब लाइक एज इफ दे आर डूइंग समथिंग वेरी बैड एंड देन दैट इंस्टिल्स a negative self image. It instills shame and shame plays a very big role in sexual dysfunction. तो आगे जाके it will cause that shame होता है ना, especially women में, it causes a lot of problems. Then you're not able to be open with your partner. Even for men, so it works the same way. The mechanics is the same. Okay. Myths about the sexual masturbation. Masturbation के बारे में नंबर 1 myth is कि आप जितना masturbate करोगे आप उतनी शक्ति खो दोगे. I mean, how does that even work? अच्छा. Like doesn't happen at all. अच्छा. Yeah. Okay. And मतलब masturbation is actually No Nut November. Yeah, that is wrong. Please, from a sexual medicine perspective, please don't do No Nut November. Just do what you do every month. Keep doing what you do. Because उसमें क्या होता है ना, when you don't masturbate for such a long time, आपका जो रेगुलर स्ट्रेस बस्टर है ना, वो अचानक से गायब हो जाता है. Okay. सो वो जो नवंबर होता है ना, देन दिसंबर इज गोइंग टू बी वेरी मच नॉट नवंबर, दिसंबर एक्चुअली. तो या मतलब लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए. डोंट टेक ब्रेक्स. जस्ट जब आपका मन करे, जस्ट गो अहेड, डू इट, वर्क ऑन योरसेल्फ. दैट इज, इट्स कॉल्ड सेल्फ लव फॉर अ रीजन. Okay. And this is like second myth. और कोई myth जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं. मैस्टरबेशन को लेके दूसरा होता है कि अगर आप मैस्टरबेट करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड सेक्स लाइफ. द रिवर्स इज ट्रू. इफ यू मैस्टरबेट, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड सेक्स लाइफ. अच्छा. बिकॉज यू विल नो व्हाट यू लाइक. सो यू कैन टेल योर पार्टनर, मेरे को ऐसे मत टच करो, मेरे को यहाँ पे टच करो, मेरे को वहाँ टच करो. लाइक आई वांट दिस, आई वांट दैट. यू विल नो व्हाट यू लाइक. You will also know what you don't like. Yeah. That is very important. So masturbation helps in discovering that, and then you just tell your partner कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है. Go Okay. from there. Any other myths? दूसरा होगा, Basically. फीमेल्स में होता है कि इट इज़ वेरी शेमफुल कि मैस्टरबेट करने से वर्जिनिटी चली जाती है. आई डोंट इवन नो हाउ दैट इज़ पॉसिबल. मतलब ऐसा नहीं होता है. एंड लाइक वर्जिनिटी इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एनी मोर. बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि मैस्टरबेशन से वर्जिनिटी नहीं जाती है. एंड मैस्टरबेशन से वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ऐसा सब नहीं है. व्हेन यू मैस्टरबेट, यू हैव एन ऑर्गेजम एंड नेचुरल जो आपका लुब्रिकेशन होता है वो उतना ही आता है. नथिंग मोर, नथिंग लेस. एंड एक और myth होता है कि if you masturbate, you have a very low time in a bed, basically. ऐसा कुछ होता है? दैट हैज़ अ क्लिनिकल बेसिस. क्योंकि व्हेन यू मैस्टरबेट, दिस इज़ फॉर मेन. व्हेन यू मैस्टरबेट, आपका खुद का हाथ, अपना हाथ, जगन्नाथ ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट बॉयज़? तो व्हेन इट्स योर ओन हैंड, यू आर मोर पावरफुल. एंड आप अपने हाथ से जो प्रेशर दे रहे हो अपने पेनिस को, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, वो आपके हाथ में, राइट? लाइक यू कैन बी एज टाइट, एज हाई फ्रिक्शन एज यू वांट. बट व्हेन इट इज़ अ वजाइना, इट इज़ नॉट द सेम. एक वजाइना इज नॉट एज हार्ड. इट्स अ सॉफ्ट जेंटल स्पेस. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट क्रशिंग फोर्स जो आपका हाथ दे सकता है. एंड फॉर दीज पीपल, it can fall short. A vagina can fall short. कि it can cause delayed ejaculation. Okay. कि मतलब आप masturbate करते हो, आपका बहुत अच्छे से होता है. But when you have sex,
with a Yeah. female partner, तो the vagina is not sufficient. So it Nah. takes a longer time. Yeah, but I am telling about the opposite thing. The opposite is also true Yeah. because when you masturbate more, आपका for example आपका libido high है या like you know you are overly excited, yeah, because आप masturbate ज़्यादा करते हो for whatever reason, Yeah. and आपको एक partner है and you want to have sex with her. The person who masturbates naturally has a good like you know अच्छा high libido होगा तभी वो masturbate कर रहे हैं. Unnaturally नहीं, मेरे को कुछ काम नहीं है तो मैं masturbate करूँ, ऐसा नहीं होता है. There has to be अंदर से desire for them to masturbate, right? Not a habit per se, you know. So for them, partnered sexual activity can be overstimulating, and that again that will cause what you are saying कि जल्दी हो जाता है, like quickie बन जाता है वो. Yeah, quick. That the woman is not satisfied, yeah, exactly, रुकना. So वो हो जाता है. तो क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि यार जस्ट बी चिल, या किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करना चाहोगे? जो मेरे कॉमन कपल्स आते हैं जो लाइक यू नो आई गेट कपल्स लॉट मैरिड कपल्स, तो उनको आई वुड टेल देम कि दे हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, whether it is to make a baby, whether it is to have good sex, whether it is like you know मेरे पार्टनर को अच्छा लगना चाहिए या मेरा खुद का ऑर्गेजम आना चाहिए. दैट प्रेशर, यू आर नॉट अ मैन विल ऑर्गेजम, ठीक है, आपको इजैक्यूलेट करोगे इट इज क्लियर कट की ऑर्गेजम हुआ. फॉर अ वुमन इट इज नॉट ऑलवेज देयर कि लाइक या सेक्स किया है तो शी विल ऑर्गेजम. देयर आर अदर वेज, यू कैन यूज योर हैंड्स, यू कैन यूज अदर थिंग्स लाइक यू कैन ब्रिंग हर टू ऑर्गेजम. जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेटिव सेक्स इज गोइंग टू मेक हर ऑर्गेजम. उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है. एंड बेबी मेकिंग के टाइम पे भी यू टेक दैट मच प्रेशर एंड इट्स गोइंग टू एक्चुअली रिड्यूस योर चांसेस. तो मतलब बेबी मेकिंग वाला प्रेशर भी बहुत हैवी होता है. आई हैव सीन कपल्स जो IVF कराते हैं एंड उसके बाद दे आर लाइक हाँ हम लोग का तो नेचुरली रहेगा नहीं, ट्विंस आ गए एंड देन 2 साल बाद नेचुरली प्रेगनेंसी रह जाती है. Yeah, if you increase the protein, does it help in your sex life basically? अगर जो आप Yes. प्रोटीन का Yes. कंजप्शन लेते, okay. And what do you think about the going to gym? If you want a good sex life, you have to basically every day if you do a physical exercise in gym and get a protein powder basically, that will increase or improve your whole life towards it, your whole जिम sexual. जाना अंदर से आना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक आपको जिम जाना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस. लेट्स सब्स्टिट्यूट जिम जाना विद डूइंग योगा एट होम, डूइंग कैलिस्थेनिक्स एट होम, डूइंग अ वर्कआउट एट होम. People who stay active in general have better lives. That includes a sex life. प्रोटीन पाउडर लॉन्ग टर्म तो हम लोग नहीं बोलते कि आप प्रोटीन पाउडर डेली 1 चमची प्रोटीन पाउडर खाओ, ऐसा नहीं होता. बट ओकेजनली यू नो व्हेन यू नीड इट यू कैन टेक इट. एंड अनलेस आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर मेडिकल इश्यूज, प्रोटीन पाउडर्स आप ओकेजनली ले सकते हो. They do help, they give you more energy. More energy means extra energy for sex, so that helps, yeah. True. And there are so many tools like Muse and Gizmos wala and all, yeah. बहुत सारे, yeah, there's Yeah. lots of So yeah. are they safe or can they be used as well as male? अब मैं अगर जो आप देखोगे तब भी वहाँ पे भी सेक्स प्रोडक्ट्स और वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो सेफ है या नहीं है? Most of these products जो sex toys बोले जाते हैं, they can be legally used, they are legally sold, so you can buy them, you can use them. Only thing is उसको पब्लिक में नहीं, डिस्क्रीटली यूज करना है. पब्लिक में ओपन में आप नहीं यूज कर सकते. यू कैन नॉट कैरी इट इन पब्लिक, दिखना नहीं चाहिए. इट्स अ फैलिक ऑब्जेक्ट. फैलिक मतलब एनीथिंग दैट रिजेंबल्स अ पीनस, राइट? तो इट्स लाइक दैट. एंड माई म्यूज जो इंस्टाग्राम पे है, दे हैव अ वेरी डिस्क्रीट, दे हैव वेरी डिस्क्रीट मसाजर्स, लाइक यू नो इवन आप घर में रख लोगे नोबडी विल फाइंड आउट, राइट? बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी आए हैं. Massagers are relatively safe. They are made with bio-safe materials. They are washable. Always wash your sex toys before and after using them. वो बहुत ज़रूरी है because you know नहीं तो you risk infection if you don't wash it. Most of them are very safe. ठीक है. Unsafe में क्या होगा? You use unnatural products. Okay. जो भी sex toys बनते हैं they undergo a standardization procedure जिसमें पता है they are cleared for body use. And occasionally this thing happens कि आपने कोई छोटा सा सेक्स टॉय आपने गलत जगह डाल दिया है, पट्टी की जगह पे, that is going to cause you problems obviously. But other than that sex toys are very safe. जो मेल्स के लिए भी रिंग्स आती हैं, वाइब्रेटर रिंग्स आती हैं, very safe and मतलब it doesn't cause any harm for a lot of couples जिन लोग का like you know जिन लोग को do want to have a good better sex life या they want to change something या spice up their sex lives. We do recommend कि आप toys try करो and this is how we teach them how to try it nicely because सिर्फ एक तरीका नहीं होता है sex toys use करने का. There's a lot of ways, there's a lot of tips and tricks to spice up your sex life with a sex toy. That helps, it can help, yeah. It Okay. works. What advice would you give to somebody who is so much
एम्ब्रेसिंग अबाउट कि यार मैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ? अगर जो आपके पास कोई रीच आउट करना चाहता है, पे हाउ कैन दे बेसिकली रीच आउट टू यू इफ ही इज़ अ particularly मेल और अ फीमेल? व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव हिम और हर? अगर इफ इट्स अ फीमेल, मतलब इफ इट्स अ फीमेल, मोस्टली अगर आप अपनी तकलीफ बताओगे डॉक्टर को, एंड द सामने पर्सन जो बैठा है आपके वो सेक्सोलॉजिस्ट है, एंड सामने लेडी बैठी है, फॉर श्योर, लाइक फॉर श्योर यू विल गेट दैट सेफ स्पेस, यू विल गेट दैट नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस, बिकॉज एज वुमेन वी अंडरस्टैंड वुमेन वेरी वेरी वेल. तो एंड बिकॉज वी नो द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू, कि मतलब ये कितना ज़्यादा तकलीफ दे हो सकता है. So you we create a very nice safe space for all patients. But when it's a woman, they feel more comfortable with women sexologists. उसमें बिल्कुल भी doubt नहीं है, ठीक है. When it's a male patient who is feeling embarrassed कि how do I even approach a sexologist, like इस topic पे, like how do I even open my mouth? Just remember कि जैसे अगर आपको हाथ में चोट लगती है या आपकी हड्डी टूट जाती है, you don't roam around with a broken leg or broken hand, right? कि नहीं मेरा हाथ टूट गया तो I'll just roam around with that. No, you get it fixed. आप उसका एक्सरे लेते हो, आप उस पर प्लास्टर कराते हो, आप दवा खाते हो, and then you get it fixed. Sexual medicine is the same way. When you have a broken sex life or you have something broken in your own personal sex life, you get it checked. उसमें क्या है, हम लोग भी उसी चीज़ के डॉक्टर हैं. Simple. We are just doctors doing our work. हम लोग we are not ashamed. मतलब that's the thing, because हम लोग उसके बारे में shameful नहीं है. We can create that non-judgmental space की, and welcome to this space. Please आइए, please discuss. We have the information, we have the right tools to help you, so we can do it. Okay. Okay. What advice would you give to the somebody who wants to be a sexologist, who is looking up to you and will be looking up to you, and basically उसको इस particular चीज़ में career start करना है because it is a emerging and उसको अगर जो आपको कोई 5 एडवाइस अगर जो देनी हो. Yeah, okay. First thing is try to, मतलब जब आप MBBS में होते हो, you can get an idea कि आप किस चीज़, a lot of people discover कि उनका ड्रीम क्या है, उनका पैशन क्या है. Try to follow your passion. मतलब आपको पीडियाट्रिक्स पसंद है या लाइक you like रेडियोलॉजी, इमेजिंग, लाइक वो सब, देन अगर तभी मिल जाता है आपको अपना फील्ड, ग्रेट. बट अगर आप आगे तक जाते हो एंड यू आर चूजिंग अ फील्ड, तो उसमें साइकेट्री, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऐसे टाइप के, गायनेकोलॉजी, ये सब फील्ड्स में आप हो, इवन इफ़ यू आर इन अ नॉन क्लिनिकल फील्ड, बट आपको कहीं से सेक्सुअल मेडिसिन का थोड़ा भी पैशन है या इंटरेस्ट है, डेफिनेटली रिसर्च इट. ढूंढो कि आप अपने रास्ते में कैसे उधर जा सकते हो. एंड सेकेंड वुड बी कि आस्क योर सीनियर्स कि लाइक आपको आस्क योर सीनियर्स कि आर यू अ गुड फिट फॉर दिस फील्ड, बिकॉज आप एकदम चुप रहते हो, आप एकदम बात नहीं करते हो, एंड टू बी एक्सपेक्टेड टू क्रिएट समथिंग, लाइक बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू टॉक अ लॉट. बहुत सारा समझाना होता है एंड बहुत सारा निकालना होता है पेशेंट में से, बहुत सारा निकालना होता है पेशेंट में से, उगलवाना होता है. सो दैट टेक्स स्किल, ठीक है. तो if you want that for yourself, then sexual medicine is a very good fit for you. And तीसरी चीज़ would be कि रिसर्च मेनली है ना, ढूंढो, बिकॉज बहुत बहुत रैपिडली चेंजिंग एंड अपकमिंग फील्ड है ये, इमर्जिंग फील्ड है. तो इसमें है ना बहुत सारे कोर्सेज ऐड होते जा रहे हैं. तो look at where you can get the right guidelines to study, to get your degree, to get the right certifications. True. Don't practice as a quack. आप MBBS होके भी या MD होके भी, you cannot practice as a quack. You have to keep studying. You have to keep updating yourself, right? And another thing would be कि you have to know कि आप क्या आप safe space में practice कर पाओगे, because before you create a safe space, you have to feel safe yourself. True. If you have your own traumas कि like आपको होता है किसी किसी का, right? You're not very comfortable with the opposite sex. You're not comfortable with elderly people of the same sex या जो भी, मतलब like किसी का history कुछ हो तो, if it is like that, if you're not comfortable with the opposite gender or something, then maybe rethink it. Or maybe specialize in just जो gender में आप comfortable हो, something like that. अच्छा रहता है. It's a good field. Yeah. Sure. No problem. Thank you so much. Thank you so much. I had fun. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. होप सो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, और अगर जो
कोई आपकी सेक्सुअल डिजायर्स है, और कोई अगर जो आपको कोई पोर्न एडिक्शन है, तो आपको कब डॉक्टर को रीच आउट करना चाहिए और किस तरीके से आप वो प्रॉब्लम से बच सकते हो या उससे ओवरकम कर सकते हो, इस पॉडकास्ट के थ्रू वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। शेयर दिस वीडियो टू योर पार्टनर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। कमेंट करके बताओ और कौन से डॉक्टर के साथ हम एक कन्वर्सेशन ले जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके के जितने भी वैल्यूएबल गेस्ट है ना, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन कीप इंस्पायरिंग।